نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 33 میں. آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فعل ماضی مجہول. مجہول کا مطلب ہے نامعلوم. اس کو ٹاپک کو سمجھتے ہیں ہم. سٹارٹ میں کروں گی کہ آپ کو فعل کا یاد ہوگا کہ فعل فاعل کے بغیر انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے پڑھا کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنا مفہوم مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ہم انہیں متعدی افعال یا ٹرانزٹیو وربس کہتے ہیں. اسی طرح کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں انٹرانزٹیو وربس یا لازم افعال کہا جاتا ہے. اب یہ بات تو طے ہے کہ ہر فعل کا فاعل موجود ہوتا ہے. تو اب وہ یا تو اسم ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا اسم ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز آپ اچھے سے سمجھ چکے ہیں, پریکٹس بھی کر چکے ہیں ان کی آپ لوگ, کہ فاعل اسم ضمیر کی صورت میں کیسے آتا ہے اور اسم ظاہر کی صورت میں کس کس طرح سے آتا ہے. اب دیکھیے, فعل معروف ایکٹیو وائس, ایسا فعل جس کا فاعل اسم ظاہر یا اسم ضمیر کی شکل میں موجود ہو فعل معروف کہلاتا ہے یا فعل معلوم کہلاتا ہے. دونوں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یعنی یا تو وہ فاعل آپ کے سامنے ضمیر کی شکل میں آ جائے گا یا اسم ظاہر کی شکل میں آ جائے گا. جیسے میں کہوں ضربنا. اب ضربنا میں جو نا ضمیر ہے اس میں نحن فاعل مستتر ہے جمع متکلم کا. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ضرب حامد, حامد نے مارا, تو اب وہاں حامد حالت رفع میں فاعل موجود ہے جو کہ اسم ظاہر ہے. ٹھیک. تو یہ ہو گئی فعل کی ایک قسم. اب جو آپ نے فعل ماضی پڑھا تھا ایکچولی میں وہ فعل معروف کہلاتا ہے, ایکٹیو وائس, کیونکہ ہمیں اس کا فاعل معلوم ہوتا ہے. فعل مجہول پیسو وائس, ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. یعنی اس میں آپ کو فاعل نظر نہیں آتا. یعنی بعض دفعہ جو فعل کا فاعل ہے وہ یا تو ذکر نہیں کیا جاتا اور اسے محذوف کر دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے کچھ ریزنز ہیں جو ابھی ہم آگے انشاءاللہ پوائنٹس کی شکل میں پڑھیں گے. فعل ماضی سے مجہول بنانا نہایت آسان ہے, ہم اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ آج. تو یہ پوائنٹس نوٹ کیجئے کہ فعل مجہول کو پیسو وائس کہتے ہیں. اب ہم اپنی آسانی کے لیے فعل مجہول کو پیسو وائس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں, تاکہ ہم, کیونکہ آپ لوگ انگلش لینگویج میں پڑھ چکے ہیں ایکٹیو وائس پیسو وائس, تو اس حساب سے آپ اس کو پیسو وائس سے اپنے ذہن میں اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ, فعل مجہول متعدی افعال کا بنتا ہے. متعدی افعال کون سے؟ جنہیں مفعول کی ضرورت ہے, ٹرانزٹیو وربس. تو یہ ریویژن کے لیے سلائیڈ کو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کہ فعل متعدی ٹرانزٹیو ورب وہ فعل جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کا بھی لانا ضروری ہو فعل متعدی کہلاتا ہے. فعل متعدی کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی فعل ہوگا, کوئی کام ہوگا, تو اس کا اثر فاعل کے ساتھ ساتھ کسی اور پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی ایک
دوسرا فیکٹر بھی اس میں آ جائے گا جس پر اس فعل کا اثر آئے گا، اسے مفعول کہا جاتا ہے۔ اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ تو یہ تھی ایک ایسے جسٹ ایک چھوٹی سی ریویژن۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ چاہیے جو آ کے میرے ساتھ لازم اور متعدی افعال میں ڈفرینس بتائے گا۔ میں آپ کے سامنے متعدی اور لازم افعال لکھ کر آؤں گی اور آپ نے انہیں سپریٹ کرنا ہے ان کے کالمس میں۔ آئیے شاداب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شاداب، اب آپ نے لازم اور متعدی افعال کو الگ کرنا ہے۔ دیکھیے، داخلہ، داخل ہونا، پہلے لازم ہے یا متعدی؟ داخل اس میں مفعول نہیں ہے تو یہ لازم ہوا۔ ٹھیک ہے۔ جعل، بنانا۔ جعل، اس نے بنایا، کسی چیز کو بنایا تو یہ متعدی ہوا پھر۔ گڈ۔ اگلا دیکھیے، آکالا، کھانا کھایا، اس نے خود ہی کھا لیا تو یہ فعل لازم۔ نہیں دیکھیں، کھانے کا عمل کسی چیز اس نے کھایا۔ ہاں کھانے کو کھایا، ٹھیک ہے، کھانے کو کھایا تو پھر متعدی ہو گیا۔ گڈ۔ اگلا دیکھیے، خرجا، وہ نکلا، یعنی کہ یہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ ضاحکا، وہ ہنسا، یہ بھی لازم ہے۔ گڈ۔ کاتبہ، لکھا، لکھنا، کسی چیز پر لکھتے ہیں تو یہ متعدی ہو گیا۔ ویری گڈ، یا کسی چیز کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی۔ ذہبا، وہ گیا تو یہ بھی لازم ہو جائے گا۔ گڈ۔ لاسٹ، قرأ، اس نے پڑھا، کتاب پڑھی یا کوئی چیز پڑھی تو یہ متعدی ہو گیا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، میوٹ کر لیجیے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، فعل ماضی مجہول کا وزن۔ اب یہ کیا ہے؟ جب ہم نے فعل ماضی سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو تب بتائے تھے 3 اوزان، فعل ماضی کے 3 اوزان تھے، فعلا، فعلا اور فعولا، یہ 3 اوزان تھے۔ اور فعل جو ہے وہاں پر اس کا فعل کا وزن ہے وہ عین کلمے کی حرکت پر ڈیپینڈ کرتا تھا، ٹھیک۔ اب وہ جو عین کلمے کی حرکت ہوتی تھی وہ ہمیں معلوم کرنی پڑتی تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے، کس وزن پر یہ فعل بنے گا، اس کی ڈائی کیا ہوگی۔ یعنی 3 ڈائی تھی نا، فعلا، فعلا اور فعولا، ان ڈائی پر فعل بنتا تھا۔ اور ہم عین کلمے کی حرکت جو ہے اسے ہمیں پوچھنا پڑتا تھا کہ وہاں کون سی حرکت آئی گی۔ اب جب ہم فعل ماضی مجہول کا وزن دیکھنے لگے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا کہ فعل ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے، وہ ہے فعلا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کو کہ اس کے پہلے حرف پر فا کلمے پر پیش ہے، عین کلمے پر زیر ہے اور لام کلمے پر زبر ہے۔ اب یہ جو اس کی حرکات ہیں یہ ایسے ہی رہیں گی، یہ فکس ہیں۔ فعل ماضی مجہول کی جو یہ حرکات ہیں یہ فکس ہیں۔ آپ کو ہمیں فعل ماضی مجہول جہاں ملے گا، کوئی بھی فعل جو جس کا فا کلمہ پیش سے شروع ہو رہا ہے اور عین کلمے پر زیر ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، فعلا۔ اب میں کلاس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ کچھ آیات، تو آپ نے اس میں سے مجھے فعل ماضی مجہول اس میں سے سلیکٹ کر کے الگ کر کے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وزن کیا یاد رکھنا ہے؟ فعلا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے ایک روٹ ٹائٹل لیا ہے، نون صاد را، مدد کرنا۔ یہ ایک اس سے متعدی فعل بنے گا۔ اگر میں اس سے فعل ماضی معروف بناتی ہوں یعنی ایکٹیو وائس، تو وہ فعلا کے وزن پر بنے گا نصرا۔ اب دیکھیے میں نے جب آپ کو کہا کہ اس سے میں فعل ماضی بنانے لگی ہوں تو میں نے عین کلمے کی حرکت کو نوٹ کیا اور آپ کو بتایا کہ یہ فعلا کے وزن پر بنے گا نصرا۔ مطلب کیا ہوا اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے، اس نے مدد کی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم اس کو فعل اس کا مجہول بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس مجہول کا وزن کیا؟ فعلا، تو نون صاد را ہم نے اس ڈائی پر رکھا تو ہمارے پاس بنا نصیرا، فا کلمے پر پیش آ گئی، ٹھیک ہے، عین کلمے پر زیر ہے، نام کلمے پر زبر ہے، نون نصیرا، مدد کرنا ہے۔ لیکن
اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ مجہول کی ٹرانسلیشن دیکھیں کریں گے، اس کی مدد کی گئی۔ یہاں آپ کو یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ فعل ماضی معروف میں فاعل کا ذکر ہوتا ہے، اور جو مجہول ہے اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوگا، فاعل کو سکپ کر دیا گیا ہے، فاعل کو ہڈن رکھا گیا ہے۔ تو یہاں جو آپ کے سامنے ان دونوں کی ٹرانسلیشن میں یہ اس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ماضی میں اس نے مدد کی، اور مجہول میں اس کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کو سمجھے گا، جب ہم نے کہا فائل، یہ فائل اس نے مدد کی، تو یہ اس یہاں پر فائل ہے، یعنی فائل نے مدد کی۔ لیکن جب میں کہتی ہوں اس کی مدد کی گئی، یعنی مدد کی گئی تو وہ کسی آبجیکٹ کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مدد، اب وہ جو آبجیکٹ ہے، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس وہ آبجیکٹ ہے، اس نے اس فائل کی جگہ لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ جو فائل تھا اس کو نکال دیا گیا، اس کو سکپ کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، اب اس کی جگہ مفعول نے لے لی ہے جس پر کام ہوا تھا۔ اب یہاں پر جو یہ اس ہے، یہ وہ اس مفعول کا ذکر ہو رہا ہے جس کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور نصرہ میں فعل ماضی معروف میں اس نے مدد کی، جبکہ مجہول میں اس کی مدد کی گئی۔ اب ہم یہاں پر آبجیکٹ یعنی مفعول کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ مجہول میں ہم فاعل کا ذکر نہیں کریں گے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، کوئلہ کا مولڈ ہے ہمارے پاس، نون سوادرا روٹ لیٹر ہے میرے پاس، نصیرہ کوئلہ کے وزن پر نصیرہ۔ اب اس سے گردان، یہ آپ کے سامنے گردان کا ٹیبل ہے، کانجوگیشن ٹیبل ہے۔ میں نے واحد مثنیٰ جمع نکال دیا، میں نے مذکر مونس نکال دیا، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کو گردان بہت اچھے سے آتی ہے، آپ بہت اچھے سے سمجھتی ہیں کہ گردان کا کون سا صیغہ کس پوزیشن پر آئے گا۔ تو ہم پہلے صیغے سے شروع کرتے ہیں۔ ایک گردان میں بناؤں گی، اس کی ٹرانسلیشن کروں گی، اس کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا۔ کوئلہ کے وزن پر نصیرہ، ترجمہ کیسے ہوگا؟ اس کی مدد کی گئی۔ مثنیٰ کا صیغہ بنائیں گے، نصیرہ، نصیرو، نصیرت، نصیرتا، نصیرنا، نصیرتا، نصیرتما، نصیرتم، نصیرتی، نصیرتما، نصیرتمنا، نصیرتو، نصیرنا۔ یہ پوری کے وزن پر ماضی مجہول کی گردان آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب ہم ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ نصیرہ، اس کی مدد کی گئی، نصیرہ، ان دو کی مدد کی گئی، نصیرو، ان سب کی مدد کی گئی، نصیرت، اس مؤنث کی مدد کی گئی، نصیرتا، ان دو مؤنث کی مدد کی گئی، نصیرنا، ان سب مؤنث کی مدد کی گئی، نصیرتا، تیری مدد کی گئی، نصیرتما، تم دونوں کی مدد کی گئی، نصیرتم، تم سب کی مدد کی گئی، نصیرتی، تو مؤنث کی مدد کی گئی، نصیرتما، تم دو مؤنث کی مدد کی گئی، نصیرتمنا، تم سب مؤنث کی مدد کی گئی، نصیرتو، میری مدد کی گئی، نصیرنا، ہماری مدد کی گئی۔ جو پیٹرن ہے وہ سارا چل رہا ہے۔ یہاں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب ہم نے ایکٹیو وائس فعل ماضی معروف کی گردان بنائی تھی، تو اس گردان میں جو فعل کے صیغے تھے ان میں فاعل حالت رفع میں موجود تھا۔ اب جب ہم مجہول بنا رہے ہیں تو مجہول میں فاعل تو نکل گیا، تو اب جو یہاں پر اس گردان کے ٹیبل میں جو ضمائر ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، ہمیں ان کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو فاعل نکل گیا اس کی جگہ مفعول نے لے لی ہے، اور مفعول تو منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو آگے، میں آپ کو اس کو پوائنٹس کے ساتھ سمجھاؤں گی کہ اس گردان میں اب جو ضمائر چھپے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، اس کو ہم آگے چل کے سمجھتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے گردان کی پریکٹس کرتے ہیں۔
तो मेरे साथ कौन आना चाहेंगी? हैंड रेस कीजिए, आइए यास्मीन। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कोयला का वजन है आपके पास, रूट लेटर है काफ ता लाम, कत्ल करना। अब बनाइए इसे मजहूल। कुतिला, कुतिला, कुतिलू, अच्छा, कुतिलत, पहले इसकी कुतिल, ट्रांसलेशन देखिए। कुतिला, ट्रांसलेशन देखिए इसकी क्या है? उसको कत्ल किया गया। उसको कत्ल किया गया। चलें अब गर्दान बनानी शुरू करें। सीगा नंबर 1। जी, कुतिला, तर्जुमा भी करना है। नहीं नहीं, आप लोग ट्रांसलेशन नहीं करेंगी, हम सिर्फ गर्दान ओके, बनाएं। कुतिला, कुतिला, कुतिलू, कुतिलत, कुतिलता, कुतिलना, कुतिलता, कुतिलतुमा, कुतिलतुम, कुतिलती, कुतिलतुमा, कुतिलतुन्ना, कुतिलतु, कुतिलना। एक्सीलेंट। तो ये थी कुतिला से उस। ठीक है, आगे हम बनाते हैं हादिया के साथ। यास्मीन जी बारकल्लाहु फीकी, म्यूट कर लें। आ जाए हादिया, शाबाश। ओके जी हादिया, उस्ताद। आपके लिए रूट लेटर है फा लाम पा। ठीक है, कोई ला के वजन पर उसको बनाइए, इसका मजहूल पहले। खोली का, ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। उसको पैदा किया गया। अब आपको इसकी ट्रांसलेशन में समझ आ रही है कि मफूल का जिक्र हो रहा है, ठीक है, फाइल का नहीं हो रहा। अगर मैं कहूँ फला का, तो उसका क्या तर्जुमा करेंगे आप? उसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? उसको उसने पैदा किया। उसने पैदा किया, गुड। दोबारा गौर करें। जी उस्ताद। उसने पैदा किया, खालका की ट्रांजिशन ये होगी, उसने पैदा किया, और खोलिका की होगी, उसको पैदा किया गया। शाबाश, ठीक है, गुड। अब गर्दान बनाना शुरू करें, खुलिका से शुरू करें। खोलिका, खोलिका, खोलिकू, खोलिकत, खोलिकता, खोलिकना, खोलिकता, खोलिकतुमा, खोलिकतुम, खोलिकती, खोलिकतुमा, खोलिकतुन्ना, खोलिकतू, खोलिकना, खोलिकना, जी, हम्म हम्म खोलिकना। ठीक, गुड, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी। नेक्स्ट हमारे साथ कौन आएगा गर्दान के लिए? अजरा जी आप आ जाइए। अजरा जी, माइक चेक करें। जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ओके, देखिएगा, जिक्र, जाल काफरा, जिक्र करना, इसका पहले मजहूल बनाएं कोई ला के वजन पे। जुकीरा, जी, जुकीरा, जुकीरा, ट्रांसलेशन पढ़िए। उसका जिक्र किया गया। इसका जिक्र किया गया। चलें जी, ट्रांसलेशन सॉरी, गर्दान स्टार्ट कीजिए। जुकीरा, जुकीरा, जुकीरू, जुकिरत, जुकिरता, जुकिरना, जुकिरता, जुकिरतुमा, जुकिरतुम, जुकिरती, जुकिरतुमा, जुकिरतुन्ना, जुकिरतू, जुकिरना। शाबाश, बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। म्यूट कर लीजिए। अरबी जुबान में फेल मजहूल क्यों और कब इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, अब इस चीज को समझ लीजिए कि अरबी जुबान में मजहूल क्यों लाया जाता है। अरबी जुबान में फेल मजहूल जब इस्तेमाल किया जाता है जब आप फाइल का जिक्र ना करना चाहें, यानी आपने फाइल को हिडन रखना है, आप फाइल को जिक्र नहीं करना चाहते, आप फाइल के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। नंबर 2, बात सूरतें ऐसी होती हैं कि फाइल का जिक्र नहीं होता। ठीक है, बात सूरतें ऐसी होती हैं कि फाइल का जिक्र नहीं होता। अब पहली कंडीशन में आपके सामने अगर आप फाइल का जिक्र नहीं करना चाह रही, तो जाहिर है उसके पीछे कोई रीजन होगी कि आपने वो फाइल का जिक्र क्यों नहीं किया। और कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि वहां पर फाइल का जिक्र नहीं किया जाता।
अब फाइल को जिक्र ना करने की वजूहात क्या हैं? देखिएगा, फाइल मालूम ना हो, पहली रीजन तो ये है कि आपको फाइल के बारे में पता ही नहीं है कि फाइल कौन है, ये फेल किसने किया है। ठीक है, जुमला तो हम बोल देते हैं, बात हम करते हैं, लेकिन हम फाइल का जिक्र नहीं करते क्योंकि हमें फाइल मालूम ही नहीं है, इसलिए उसका हम जिक्र नहीं करते। जैसे मैं आपसे कह दूं कि किताब चोरी हो गई, अब किताब चोरी हो गई है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि किसने चोरी की है, तो मैंने इसलिए फाइल का जिक्र नहीं किया। मैंने एक रैंडम बात कर दी कि किताब चोरी हो गई। दूसरी, फाइल चूंकि कॉमन होता है तो सबको मालूम होता है। अब दूसरी रीजन क्या है कि जब हम कोई ऐसी बात करते हैं और फाइल कॉमन है, कॉमन मीन्स कि अंडरस्टूड है कि ये काम इसी फाइल ने किया है, तो हम फिर उसका जिक्र नहीं करते वहां पर, तो बस बात खत्म, बता दिया कि हो गया। जैसे इंसान को पैदा किया गया, अब आप, हम सब अच्छे से जानते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो हम वहां पर समटाइम वहां फाइल का जिक्र नहीं किया जाता। ये तो एक एग्जांपल मैंने वैसे आपको दी है। ठीक है, फाइल खुद को मालूम हो लेकिन मसलहतन जिक्र ना किया जाए। अच्छा, अब क्या तीसरी रीजन दी जा रही है कि फाइल हम जानते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हम फाइल को जानते हैं कि हाँ ये काम इसने किया है, लेकिन हम किसी मसलहत के तहत उसका जिक्र नहीं करते कि ये काम इसने किया है। ठीक है, जैसे दो बहन भाई हो और एक से दूध गिर जाए, तो एक जाके अम्मी को बताता है अम्मी दूध गिर गया है या दूध गिरा दिया गया, तो वो फिर ये नहीं बताएगा कि मेरी बहन से गिरा है, वो खामोश हो जाएगा, फाइल का जिक्र नहीं करेगा कि किससे ये काम हुआ, तो उसको कवर करने के लिए कि बस जी दूध गिर गया, ये नहीं पता किससे गिरा है। ठीक है, इस तरह से। तो अरबी में पैसिव वॉइस तभी लाया जाता है या फेले मजहूल तभी लाया जाता है कि जब आपने फाइल को जिक्र कर नहीं करना, फाइल का ना करना मकसूद हो। ठीक है, मतलब आप, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अब जब हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं कि आप वहां पर सब्जेक्ट को यानी फाइल को उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट ले आते हैं। ठीक है, फाइल की जगह पर ऑब्जेक्ट ले आते हैं। तो इसी तरह जब हम अरबी में बनाएंगे तो हम यहाँ भी फाइल, अच्छा इंग्लिश में तो आपका फाइल जिक्र होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ खालिद वॉज बीटन बाय अली। ठीक है, अब खालिद क्या है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मफूल है जिसको मार पड़ी, किसने मारा, अली ने मारा, अली फाइल है। लेकिन अरबी में देखिए कि अरबी में आप फाइल का जिक्र नहीं करते लेकिन बात आप कर देते हैं। ठीक है, आप उसको अगर हम करें तो हम कह देंगे खालिद वॉज बीटन, हम ऐसे भी कर सकते हैं। या अगर मैं उसको अरबी में बनाऊं तो मैं कहूंगी दुरिबा खालिदुल, खालिद को मारा गया, इस तरह से। अब इसको आगे समझते हैं हम थोड़ा सा। ये जब हमारे पास ये गर्दान हमने की, तो मैंने आपको सब बताया कि इसमें जो जमायर मौजूद हैं, अब उनका स्टेटस हमें तय करना है कि उनका स्टेटस क्या है। जब हमने फेले माजी मारूफ में गर्दान की थी, तो उसमें जो ये जमायर थे ये हालत रफा में थे और ये फाइल का स्टेटस लिए हुए थे। अब जब हम मजहूल की गर्दान कर रहे हैं तो मजहूल में क्योंकि फाइल का जिक्र नहीं होगा, तो वो तो हो गए, वो बात तो हो गई खत्म, फाइल तो निकल गया कैटेगरी से। ठीक है, अब हमने उसकी बात नहीं करनी। अब जो इसके अंदर जमायर मौजूद हैं, इस गर्दान में जो जमायर मौजूद हैं, वो क्या स्टेटस लिए हुए हैं? हमने कहा कि जो मफऊल है वो फाइल की जगह ले लेता है आके, लेकिन हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि जो मफऊल होता है वो हालत नसब में होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर जमायर मौजूद है वो हालत रफा के मौजूद हैं। अब क्या किया जाए? तो यहाँ पर फिर अरबी में इनको एक टर्म दी गई, नायब फाइल या कायम मकाम फाइल। अब वो जो मफूल था उसको नायब फाइल का नाम दे दिया गया,
کیونکہ مفعول ہم اسے کہہ نہیں سکتے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، اور فاعل کا ذکر ہمیں نے کرنا نہیں، تو پھر اب جو یہ ضمائر مجہول کی گردان میں ہیں ان کو نائب فاعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی ملک کا صدر ملک میں موجود نہیں ہوتا تو اس کی جگہ پر جو ایز اے صدر کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں قائم مقام صدر۔ تو اب یہاں پر فائل موجود نہیں ہے، لیکن جو مفعول ہے وہ ایز اے فائل کام کر رہا ہے، تو ہم اسے کہیں گے قائم مقام فائل یا نائب فائل۔ آپ اپنی آسانی کے لیے نائب فائل کہہ سکتی ہیں اس کو، ٹھیک ہے، چھوٹی ٹرم ہے، آسان ہوگی۔ اچھا، نتیجہ کیا نکلا، کنکلوژن کیا ہے کہ فعل معروف میں فائل موجود ہوتا ہے اور فعل مجہول میں نائب فائل ہوتا ہے، بات ختم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے، تو آ جائیے آپ لوگ، یاسمین شہلا آپ آ جائیے پہلے۔ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شہلا، میں آپ کو جملہ دے رہی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کا مادہ دوں گی، پھر آپ نے اس کا ماضی مجہول کا جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب کو رزق دیا گیا، رزق دینا، را زا قاف۔ اب آپ مجھے بتائیے ان سب کو، آپ کو کون سا صیغہ لگ رہا ہے یہ گردان کا؟ ان سب، ہم، یہ تھرڈ، جی نمبر تھرڈ ہے، اوکے، جمع، جمع، ٹھیک، جمع غائب۔ ہاں جمع جی غائب ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب بنائیے فعلا کے وزن پر اس روٹ لیٹر کو ڈالیے۔ رزقا، تیسرا بنانا ہے جمع مذکر غائب کا، رزقو، رزقو، گڈ۔ اب مجھے اس میں بتائیں کہ اس میں جو نائب فائل ہے وہ کیا ہے؟ ہو، شاباش۔ اچھا ایک اور کیجیے، مجھے حکم دیا گیا، حکم دینا ہے حمزہ میم را سے، ٹھیک ہے۔ اب کون سا صیغہ آئے گا ادھر بتائیے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ واحد، واحد، واحد غائب، متکلم، غائب، مجھے، مجھے، ہاں مجھے، ہاں ٹھیک، متکلم، جی۔ ہاں گڈ۔ چلیں اب بنائیے، امیرو، امیرو پہلا بن گیا، اب اس سے 13واں صیغہ بنائیے۔ اچھا امیرتو، یس، ہاں، امیرو، نہیں امیرت، امیر تو، امیرتو، تاپش ہاں تو، ہاں انا کی، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیں اس جی، میں نائب فائل کیا ہے؟ نائب فعل ہو گیا انا، انا، گڈ۔ آگے دیکھیے ان دونوں کو، اچھا چلے میں اب کسی اور اسٹوڈنٹ کو بلاتی ہوں، بارک اللہ فیکی، ہادیہ آپ آ اوکے، جائیں۔ جی استاذہ۔ جی دیکھیے ان دونوں کو بلایا گیا، بلانا خوا لام با سے ہے، ان دونوں کون سا صیغہ لائیں گی گردان کا؟ دوسرا سیکھا۔ ٹھیک ہے، مثنیٰ مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ بنائیے اب جی، تولیبا، لیبا۔ اب اس میں تولیبا، فائل کیا ہے؟ ہما، ایکسلنٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا میوٹ کیجیے، ایک پوائنٹ میں یہاں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ ہاں اب دیکھیے جب ہم نے یہ گردان بنا لی، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس میں جو ضمائر موجود ہیں وہ نائب فائل کا اسٹیٹس لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب صیغہ نمبر 1 اور 4 آئے گا تو آپ کا جو نائب فائل ہے وہ اسم ظاہر یا ضمیر کی صورت میں آپ کو دونوں صورتوں میں مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو باقی گردان کے 12 صیغے ہیں اس میں آپ کو آپ کا نائب فائل اس کے ساتھ ملے گا، جیسے نصیرہ میں الف، نصیرو میں واو، نصیرتا میں تا، نصیرنا میں نا، پھر نصیرتا میں تا، تما تم، آگے تی تما تننا، تو
ना, ये सब नायब फाइल का स्टेटस लिए हुए हैं, ये सब नायब फाइल हैं। इस बात को आपको याद रखना है। पहले और चौथे सिगे के साथ आपको नायब फाइल आगे मिल सकता है, लेकिन इधर आपको बाकी जो गर्दान के 12 सिगे हैं नायब फाइल उनके साथ मौजूद है। ठीक है, आगे करते हैं प्रैक्टिस थोड़ी सी और। कौन आएगा मेरे साथ? तहसीन जी आप आ जाइए। रुमेशा आप आ जाइए, उनका माइक नहीं तो नहीं तो आ जाइए रुमेशा। ओके, देखिए मैं आपको अरबी का एक जुमला दूंगी। रुमेशा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मैम, आ रही ओके, आपको अरबी का एक जुमला दूंगी। फेल मजहूल बनाना है। मुझे मजहूल का वजन बता दें एक बार, क्या है फेल माजी मजहूल का वजन? है मैम। फूइला, फाप के ऊपर पेश, आइन के नीचे जेर, लाम के ऊपर जबर। आपके पास है ज़राबा हामिदुन महमूदन। ठीक है, अब जी मुझे इसमें फाइल जी और मैम। मफूल बताइए। मैम फाइल हामिदुन है और मफूल महमूदन है। महमूदन है। अब जब हम मजहूल बनाते हैं तो हमने क्या करना है मुझे बताइए। हम मैम हमने हमने हम्म फाइल को छुपाना, गुड। फाइल को हमने जाहिर नहीं करना, उसको हमने छुपाना है। अब हमने फाइल को समझे छुपा दिया हामिदुन को। तो अब जो ये फेल था ज़राबा, इसको लाइए मजहूल के वजन पर। मैम दूरी व दूरीबा। अब हमने कहा कि जो मफूल था वो फाइल के स्टेटस पे चला जाएगा। ठीक है, अब जब वो फाइल के जी स्टेटस पे चला जाएगा तो फिर इस मफूल का इराब क्या होगा? महमूदन। मैम रफा ठीक, मरफू हो जाएगा। बिल्कुल कीजिए। मैम दूरी व महमूदुन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तर्जुमा कर दें जल्दी से। मैम मजहूर वाले का करना है कि जो स्टार्टिंग में अरबी का था? अब मजहूल वाले का कीजिए। ठीक है। उसने महमूद को मारा। नहीं, अब आपने उसने देखें, उसने कह के आपने फाइल का जिक्र कर दिया, हमने फाइल का जिक्र नहीं करना। अब हमारे नहीं पास सॉरी, महमूद मारा हम्म गया। दोबारा। महमूद को महमूद को मारा गया। शाबाश, महमूद को मारा गया। अब महमूद उन क्या है यहाँ पर? मैम नाइब फाइल, वेरी गुड, नाइब मफूल। बिल्कुल जी नाइट फाइल है, नाइट फाइल है मफहूम। वेरी गुड, आ जाइए जुबिया। बारकल्लाहु फीकी। जुबिया, जज़ाकल्लाह मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी जुबिया कीजिए जरा। खलक़ल्लाहुल खाल इंसाना, फाइल क्या है? इसमें फाइल जो है खलका है। फाइल, फाइल सॉरी, फाइल इंसानो, फाइल नहीं अल्लाह, अल्लाह फाइल है लफ्ज और अल्लाह। इंसान उसका मफूल है और ठीक, खाला का जो है वो फेल है। अब जब हमने इसका मजहूल बनाना है तो आप क्या करेंगी? इसमें हम वो बदल देंगे, इसकी खुली का हो जाएगा और इसको फाइल को हम क्रॉस कर देंगे। फाइल हमने निकाल दिया, जी फेल को हमने कोयला के वजन पर बना लिया कुली का। और अब मफूल जी। का क्या करेंगी? मफूल का ये करेंगे कि खुली इसके साथ खुली मफूल का का स्टेटस चेंज इंसान, कर देंगी ना? खुली का इंसानुन कर देंगे। नहीं, इंसान उन क्यों? नहीं करेंगे। औरिफ बिन नाम इसम आ रहा है ना आपके सामने। हाँ जी, तो तो इसमें फिर हम करेंगे खलकल इंसानु। नहीं, आप फेल को भी तो चेंज करना है। देखिए जुबिया पढ़िए, खुलिकल इंसानु। किया था, हाँ जी सॉरी, खुलिकल इंसानु ठीक हो गया। ठीक है, खुलिकल इंसानु, फेल को हमने मजहूल के वजन पर डाला, फाला का और सिक्का। और अब इंसान को बनाया हाँ, गया। जो मफूल था ना, अब उसने फाइल का स्टेटस ले लिया। ट्रांसलेशन पढ़िए। इंसान को पैदा किया गया। इंसान को पैदा किया गया। ओके, बारकल्लाहु फीकी। खुलिकल इंसानु। अब खुलिका फेल मजहूल, फेल माजी मजहूल है। और अल इंसानु, ये यहाँ पर नाइब फाइल है। तो ये जो मफूल है ना, एक्चुअली में ये फाइल की गैर मौजूदगी में फाइल का काम करते हैं। ठीक है,
मेरे साथ नेक्स्ट आ जाइए। फातिहा आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद। फातिहा देखिए, क़तलल जी। मुस्लिमूनल काफिरीना। अब मुझे बताइए इसमें फाइल क्या है? मुस्लिमूना। मफूल क्या है? काफी अल काफिरीना। अल काफिरीना। ओके, अब आप इसका मजहूल बनाइए, ठीक है? आ पुतिला काफिरूना अल काफिरूना। कुतिलल काफिरून। ठीक है, गुड, वेरी गुड। पुतिलल अब काफिर। आपने काफिरूना क्यों लेकर आई, मुझे इसका रीजन बताइए। ये नाइबुल फाइल बनेगा यहाँ पे मजहूल के साथ, इसलिए वो हालत रफा में होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसने अब फाइल की जगह ले ली ना, तो ये एक्चुअली में जी। अल काफिरूना मफूल ही है, लेकिन ये अब क्योंकि फाइल मौजूद नहीं है तो ये फाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और इसीलिए इसका हमने क्या नाम रख दिया, नाइब फाइल हो गया। तो इसकी ट्रांसलेशन पढ़िएगा। कुतिला कत्ल किए गए काफिर। जी, काफिरों को या कत्ल किया काफिरों गया। को कत्ल किया गया। ओके। काफी बहुत अच्छी कोशिश की माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी। नेक्स्ट आ जाइए, आमीन। उम्मे रुकैया। उम्मे रुकैया माइक चेक कीजिए। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आगे आप देखिए, असरा इब्राहिमुल वलदैनी। अब आप मुझे बताइए इब्राहिमू क्या है? इब्राहिमो हमारे पास फाइल है हम्म और अल वालदैनी हमारे पास मफूल है। मफूल है। अब मजहूल बनाइए, तो आप क्या करेंगी, किस वजन पर आ, लगाइए फेल को? हम फेल को गायब कर देंगे और फेल को नहीं गायब फुल करना। सॉरी फेल को हम फुइला के वजन पे लाएंगे। गुड। और बनाइए आप। नुसीरा हम्म नुसीरल वाला हम्म वलादईनी। फिर इसका क्या है, इसका स्टेटस क्या है, इसका अदद क्या है, पहले बताइए। इसका अदद मुसन्ना है। ओके, और इसका इराब क्या है, स्टेटस? इसका एराब हालत नसब है। ठीक है, तो अब आपने कहा कि हमने जब मजहूल बनाया तो मफूल ने किसकी जगह ले ली? मफूल ने हालत नाइब फाइल की जगह ले ली। फाइल की जगह ले ली ना, फिर वो नाइब फाइल कहलाएगा। अब फाइल की जब जगह ली तो इसका इराब क्या हो जाएगा, रुकैया? हालत रफा में हो जाएगा। बनाइए अब, शाबाश। नुसी नुसीरल वालदानी। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? अब इसमें जी नाइब सर। फाइल क्या है आपके पास? अल वालदानी। अल वलदानी। तो इसकी स्टेटस, इसका इराब क्या है? इसका स्टेटस हमारे पास हालत रफा में है। शाबाश। और ये क्या कहलाएगा? नाइब फाइल। हाँ जी, शाबाश। ट्रांसलेशन पढ़िए। दो लड़कों की मदद की गई। बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। तहसीन जी आप आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तहसीन जी पढ़िए। नसरू हाँ फातिमाता जी। व हाँ, मरियमा। अब मुझे बताइए इसमें फाइल क्या है? इसमें फाइल जो है ये नसरू है। वो फेल है ना, फाइल क्या है इसमें? सॉरी, फातिमा व मरियमा। फाइल की राबी हालत क्या होती है? नहीं नहीं, नसर सॉरी, होम। होम जमीर इसमें फाइल है। कौन सी जमीर है? होम। होम जमीर फाइल है इसमें, गुड। जी और फातिमाता व मरियमा, ये इनका क्या स्टेटस है? जी जी। ये सॉरी, फाइल मफूल है। मफहूम है, ठीक है। देखिए ना, हालत नसब में है, ठीक, जो जी कि जी, गैर हाथ है नसर मुंसरिफ में। है ये। ओके, जी जी। अब आप मुझे इसका मजहूल बनाएंगी, तो किस वजन पर बनाएंगी? होम
कोयला के वजन ये पर। बताने का। कोयला के वजन पर। जी हाँ, फुइला। ठीक है, अब आप बनाइए इसका। फुइला। अच्छा, सॉरी, नुसिरु। देखिए, नुसिरु फातिमाता अब जो ये मफूल थे, मरियम। इन्होंने जी फाइल का स्टेटस लेना है तहसीन जी। ठीक है, जी जी। ये मफूल हाँ थे, जी। ये फाइल का स्टेटस ले लेंगे, फाइल की जगह पर अब आ जाएंगे। तो फिर आप फेल कौन सा लेके आएंगी, फेल का कौन सा सीगा लाएंगी, इधर गौर कीजिए। जिसमें नसरु में है। देखिए, फाइल को छुपाना है ये एक। तो जी। हाँ, आप हाँ जी मेरे साथ ही रहिएगा, हम इसको मिलकर सॉल्व जी जी करेंगे। यास्मीन आप जी आइए। जी मैम। अब आप मुझे बताएं यास्मीन, बल्कि आप जी। तहसीन जी की हेल्प करें। अब आप उन्हें बताएं कि जी। फातिमाता व मरियमा, इसका क्या स्टेटस हो जाएगा। मजहूल में ये यहाँ पर। मजहूल में। जी, मजहूल में नाइबुल फाइल करना होगा हमें उन्हें। नाइबुल फाइल बन जाएंगे। अब जब वो अच्छा। नाइबुल फाइल बन जाएंगे तो उनका एराब क्या होगा। रफा हालत रफा में हो जाएंगे। ठीक हो गया। रफा। अब जब जी। हमने इन्हें जी। रफा में लेकर गए, तो हमें फेल कौन सा लाना है, ये इसकी जिन्स और अदद के हिसाब से लेकर आइए तहसीन जी अब। अ, नुसीरा, नुसीरा हो जाएगा। नहीं, नुसीरत। हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए, ठीक बोलिए। नुसीरत फातिमातु व मरियमु। गुड, अब आप समझिए बात। देखें, जब जी जी आप बारकल्लाहु फी की यास्मीन म्यूट कर लें। देखिए तहसीन जी, जिस वक्त हमने जी जी। मजहूल बनाया, हमने हाँ नसरूम जी में जो हम फाइल मौजूद था, हमने उसको निकाल दिया। ठीक है, जी जी। अब हमने हाँ जी आगे फातिमाता व मरियमा जो के मफूल थे, उनका स्टेटस चेंज कर दिया। उनको हम ले आए जी। फाइल की जगह पर। मफूल फाइल की जगह पे। अब जब वो फाइल की जगह पर आए, तो जो आपके पास फेल मौजूद था पीछे, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया ना। ठीक है, अब हम उसी हाँ रूप जी से हमने होम फाइल तो निकाल दिया, इसका हमें जिक्र नहीं करना। जी जी। ये निकल गया यहाँ से, हाँ जी ये तो रेस में से निकल गया बाहर। ओके, जी जी अब जब हमने फातिमातु व मरियमु किया, ठीक है, तो अब आपने इस जी सीखे जी पर गौर करना है कि आप फेल का कौन सा सीगा लाएंगी। तो आपको ये बात अच्छे से मालूम है ना कि हमने जी जब हमारे पास फाइल जाहिर हो और जी। मुअन्नस हो, तो गर्दान का चौथा सीगा लाएंगे। ठीक है, चौथा तो ये सीगा। चौथा जी सीगा, जी जी। मुसीरत फातिमतु व मरियमु। मरियम। अब इसकी ट्रांसलेशन जी। कीजिए जरा। पहले की क्या अ, बनी, पहले की क्या बनी। नसरू अ, फातिमा व म- मरियमा। उन्होंने उन्होंने मदद की फातिमा और मरियम की। गुड, अब इधर कीजिए आगे, मजहूल में कैसे करेंगी। अ, फातिमा और मरियम की मदद की गई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आप बात समझ गई, पॉइंट समझा आपने कैसे करना है इसको। जी। चलो, वेरी एक और गुड। नहीं, अब एक और बेनजीर की बारी है। अब इंशाल्लाह क्लास में कीजिएगा आप ठीक है। प्रैक्टिस, इंशाल्लाह, बारक अल्लाह हाँ फीक। जी, जरूर जरूर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बेनजीर जज़ाकल्लाह। प्लीज चेक कीजिए। जी। चलिए फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। चलिए बेनजीर कीजिए, पढ़िए। अच्छा हाँ, ये है कुबिलुल हदियत है। वो बिलू क्यों, हरकत देखिए पहले पे, पहले सिंपल पढ़ें। अ, अच्छा अच्छा, ये है कबल। देखिए, हाँ, काबिलुल हदियता, ये है कबिलुल कॉफ। सॉरी, हम्म, कबिलुल हदियत नाम। हाँ, कॉफ कबिलुल बा लाम। हदियत। अब मेरी सुन लीजिए, जी कॉफ बा लाम रूट लेटर है, फाइला के वजन पर आता है, तोहफा, हदिया। ठीक है, जी। ठीक है, इसको कबूल करना। ठीक है, हम्म, काबिला कबूल जी करना। ठीक है, जी कहाँ गई। जी जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो अब काबिला से कबूल करना, तो बनाइए इसमें, दोबारा पढ़िए जुमले को जरा आप ठीक से। कबिलुल हदियत यानी। हम्म हम्म, फिर इसमें फाइल हाँ, क्या है। इसमें फाइल है कबिलुल, कबिलु, हम्म, कबिलुल। तो देखिए ये ये हो क्या, गए, उन्होंने उन्होंने तोहफा कबूल किया। पहले मुझे आप उन्हों फाइल बताइए बेनजीर। होम, हम्म, होम। होम, ठीक है,
अब ये है होम, तर्जमा कीजिए। हाँ, उन्होंने तोहफा कबूल किया। उन्होंने तोहफा कबूल किया। हदिया था, ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये तहदियत, नसब में ये है ना? है इस वक्त नसब में है, तो ये है फाइल। मफूल। तह, फाइल अच्छा, तो हमने मफूल होम है, सॉरी। निकाल लिया पीछे, ठीक है। अब हाँ जी जी बनाइए जी। फुइला के वजन पर, बनाइए। हाँ, ये होगा फोइला के वजन पे कुबिलर। कुबिलर। कुबिला। गुड। अब आपके पास अल हदिया था, ये हालत नसब में था, तो ये अब किसकी जगह पर चला जाएगा? अब ये अल हदियतु हो जाएगा, गुड। रफा में आ अब आप जाएगा। अब आप दोबारा बनाएं जुमला। कुबिलुल हदियत। ओके। तो देखिए आप फेल ठीक ला रही हैं हदियत, क्या? नोट कीजिए। कुबिलुल हदियतु। देखिए, बनाया आपने मजहूल ठीक है, लेकिन आप फेल को अब फाइल के हिसाब से नहीं ला रही, नाइब फाइल के हिसाब से। देखिए सही। इसका। हाँ, सही सही। कुबिलल हदियतु। हदियतु ये हो गया, एक हो गया ना फिर तो ये भाई वो हदियतु। बात ठीक है आपकी, लेकिन अब हम्म, देखिए ताई मरबूता आ रही है आखिर में, हम्म। तो फाइल क्या? ताई मरबूत आ गया तो ये मुअन्नस हो जाएगा। हम्म, कीजिए। हाँ, ये मुअन्नस हो जाएगा, तो उसके लिए फिर हमको मुअन्नस लाना पड़ेगा। ले आए। हाँ, तो ये हदियत उसने देखिए। तोहफा कबूल किया, तो ये हो जाएगा उसने। तो ये देखिए। उस देखिए। देखिए, ये पढ़े, आप पढ़े जरा, आपके सामने आया। कुबिलत हदियतु। वो भी लतिल उसने। हदिया तो ठीक है। आप कुबिलत। पॉइंट नहीं मेरा कैच कर रही, मैंने आपको अच्छा, दिखाया कि ये तायर मरबूता आ रही है, ठीक है। हाँ, ये अब जब मुअन्नस हो ये गया। नाइब फाइल के स्टेटस पर आएगा ये मफूल, तो ये हालत रफा में जी, चला जाएगा, ठीक है। अब सही। जब हमने पीछे फेल मजहूल लाना है, तो हमने इस जो आपके पास नाइब फाइल है इसकी जिन्स और को देखते हुए लाना है, ठीक है। जी, ठीक है। अब देखें, इसम जाहिर होगा, फाइल जाहिर होगा तो पहला या चौथा सीगा आएगा। मुजक्कर होगा तो पहला, सही। और मोनस होगा जी, तो चौथा। अब ये आपके पास चौथा सीगा सीधा सीधा आ रहा है, कोई इसमें है ही नहीं, जी, मैंने कहीं इसमें वो रखा ही नहीं। अगर मैं आपसे सही। कहूँ, चलें, कौन आएगा एक मेरे साथ, और आप म्यूट कीजिए। यास्मीन आप आइए जरा। चले, अफरीना ने नहीं है, अच्छा ठीक है, आइए यास्मीन जरा। जी मैम। अब मैं आपसे अगर यास्मीन कहती हूँ कुबिलू, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कुबिलू, ठीक है, हदिया तक को भूल जाइए, ठीक है। हम्म, कुबिलू, इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगी आप? कुबीलू में जगह उन सब ने कबूल किया। नहीं, वो तो हो जाएगा कुबीलू काबिलू, ना, उन सब। नहीं 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 नहीं, उन सब हम्म। कबूल किया, कबूल किया गया ना, हो गया उन सब। हाँ, उन्हें कबूल किया गया, ठीक है। उन्हें कबूल किया गया। हाँ। अब इसमें नाइब फाइल क्या है, मुझे इतना सा बता दीजिए। होम। होम। ओके, गुड। पॉइंट समझिए मेरा, कि अब हम अगर जमीर की शक्ल में हमारे पास आ जाए नाइब फाइल तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। जी। ओके। अब आ जाइए समर, आप आ जाइए प्लीज। बारकलॉफी की, थोड़ा सा हम इसको गौर से करें ना, तो हम इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। समर फिर दोस्त प्लीज चेक करें, माइक आ जाइए। अच्छा समर जी। अस्सलाम जी, देखिए, जी बस। अब मैंने आपके लिए किया नासारू से नूसीरू, ठीक है। ये देखिए ये वाला। जी अब मुझे जी। बताइए, ये मैंने मजहूल बना दिया नूसीरू, क्या तर्जुमा करेंगी? अ, उनकी मदद की गई। उनकी मदद की गई। अब इसमें नाइफ फाइल क्या है? इसमें नाइफ फाइल हुम है बाजी। गुड। अगर मैं आपसे कहूं नुसीरत, इसको कीजिए, इसका सिर्फ इसका कीजिए नुसीरत का। उस औरत की मदद की गई। जी, उस मुअन्नस की मदद की गई। अब इसमें नाइफ फाइल क्या आएगा?
इसमें नाइब फाइल हिया आएगा। गुड। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं कि जब आपके सामने जो है इसम जाहिर आ जाएगा तो वो आप उसका आप उसको नाइब फाइल आपका इसम जाहिर की सूरत में भी आ सकता है और जमीर की सूरत में भी आ सकता है, दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, जाहिर की सूरत में होगा तो वो आपको आगे हालत रफा में मिल जाएगा, और जमीर की सूरत में होगा तो वो उसी मजहूल के सीगे में मौजूद होगा। ठीक है, अब ये जी कुबिलतिल हदियातु, इसकी ट्रांसलेशन होगी तोहफा कबूल किया गया। ठीक है, जी ओके। जी बस आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो ये मफूल है एक्चुअली में, ठीक है, जो कि फाइल की गैर मौजूदगी में फाइल का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इनका नाम नाइबुल फाइल रख दिया है। म्यूट कर लीजिए। आज हमने क्या सीखा? आज हमने फेल माजी मौजूद सीखा। फेल माजी मौजूद का वजन है फुइला। इसी एक वजन पर हमने मुख्तलिफ गर्दानें बनानी सीखी हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।